پہلے تو میں آپ کا شک دور کرنا چاہتا ہوں، ہندوستانی تو ہم سب ہیں، یہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ جاوید قریشی روڈ پہ آ کے کہتا ہے، کپڑے پھاڑ کے کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، یہ ان فرقہ پرستوں کو میری طرف سے ایک تماچا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ترنگا ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، تو یہ ان کے لیے میسیج تھی۔ ہم سب ہندوستانی ہیں اور پھر ڈرتے کیوں ہیں کہنے سے کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں، یہ ایک میسیج تھی اس ٹائم پہ ان سیاستدانوں کے لیے۔ بڑا تو آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے، 70 سالوں میں 30 سالوں میں بڑا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اب ان کو ڈر ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ڈر ان کے ذہن میں بیٹھا ہے، اس لیے یہ 2-3 پارٹیاں جنہوں نے پیپلز الائنس بنایا تو اس لیے یہ میدان میں اترے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم جیت کے نہیں آ سکتے ہیں، ہم نے عوام کے ساتھ پچھلے 70-30 سالوں سے دھوکہ بازی کی ہے، اس لیے انہوں نے ایک جٹ ہو کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عوام باخبر ہے، پیپلز الائنس ایک ڈونگ بہت بڑا ایک گینگ ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا گینگ ہے۔ جیسے 30 سالوں سے ہمارے نوجوانوں کو مرغزاروں میں پہنچایا گیا، ویسی یہ گینگ اب دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے 91-92 میں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا نظام مصطفیٰ کا، تو وہی آج دوبارہ اس کو دہرانا چاہتے ہیں اور اس عوام کو دوبارہ اس دہشت گردی کی پٹری پہ لانا چاہتے ہیں، مگر عوام باخبر ہے اب ان کی نہیں چلے گی، ان کو منہ توڑ جواب ہوگا، عوام ان کو منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ فیل ہے تو اسی لیے ان کو ایک ڈر تھا، تو اسی لیے پیپلز الائنس بنایا۔ دیکھو، شیر تو ہر جگہ گھومتا ہے، شیر سب نہیں ہوتے۔ ڈر ہے میرا، جب پاکستان کو ڈر ہے، ان فرقہ پرست سیاستدانوں کو ڈر ہے، اس میں گنے چنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میرا ڈر لگتا ہے، مگر میں ایک کاری کرتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں اور سچا ہندوستانی ہوں۔ میں عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں وہ شخص نہیں ہوں منہ میں رام رام تو بغل میں چھری، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جاوید قریشی ایک ابھری ہوئی آواز ہے جموں کشمیر کی، اور جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو میں نے نوٹس کیا آج 30 سالوں سے جو استحصال ہوا ہے، اب ہم ہونے نہیں دیں گے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہر گراؤنڈ میں ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی سچا آدمی آواز اٹھاتا ہے، پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ اس میں رہا ہے اس کو دبانے کی۔ میں عوام کی بالکل سچی آواز ہوں۔ پاکستان ہمیں اس لیے دبانا چاہتا ہے کہ اب لاکھوں لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہاں پاکستان کو کوئی چاہتا نہیں ہے، ہم پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں، ہماری بات پاکستان نہ کرے، ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، کشمیری ہیں، ہم خود اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ آج ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ بھی ہندوستانی ہیں۔ اگر ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہوتا تو پہلے ہو جاتا تھا، آج کیوں؟ آج ہم یہ ماننے کے لیے نہیں تیار ہے اور نہ ہم مانیں گے، اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہے کہ ایسی حرکتیں نہ کی جائے اور یہاں ان لیڈروں کی آواز کو نہ دبایا جائے جن کی آواز سچی ہو۔ یہ دکھ کی خبر ہے، جب میں نے دیکھا مذمت کریں تو کب تک کریں، جانے ہم ہر وقت گنواتے ہیں، پاکستان کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ، پاکستان ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے،
वहाँ स्कूलों को नहीं बख्शा जाता है, बच्चों को नहीं बख्शा जाता है। एक शख्स आ जाता है बम लेके और स्कूल में ब्लास्ट कर देता है, हज़ारों बच्चे वहाँ मारे जाते हैं। इनके ऊपर कोई तवक्का नहीं है कि ये ऐसा नहीं करेंगे, इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। और हमारे मुल्क की जो सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, बिल्कुल ये इनको हर वक्त मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। इंशाअल्लाह रहमान आगे भी होगा ऐसा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इनके ऊपर और कोई तवक्का नहीं है, दहशतगर्दों के ऊपर और कोई तवक्का नहीं हो सकता है। देखो, हुर्रियत ने यहाँ बेड़ा गर्क किया है, बहुत बड़ा जाल तो इन्होंने यहाँ पे फैलाया, दहशतगर्दी का आलम तो इन्होंने उठाया यहाँ पे। इसीलिए तो मेरी बातें कड़वी लगती है। सच बोलने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। अगर मैं सच बोलता हूँ तो इनको मिर्ची लगती है। क्यों भाई मिर्ची लगती है? अगर 30 साल से इन्होंने एक आवाज़ उठाई है, इसका निचोड़ ज़ीरो भी नहीं है, तो लाखों लोगों को इन्होंने मरगुजारों में पहुँचाया। उन माँ बापों को ये क्या मैसेज देंगे? इन माँ बापों को क्या कहेंगे वो इस वक्त कि आज हम ज़ीरो पर है? इन्होंने खास कर इक़्तिदार के लिए किया। जब अभी वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है हाफिज़ सईद, और वो दूसरा है और एक जिसने इलेक्शन लड़ा था सईद सलाउद्दीन, जब इलेक्शन लड़ा उसने, अगर उसने जीत लिया होता, क्या वो MP नहीं था? क्या वो MLA नहीं था? तो अगर वो हार गया, फिर उसने गन उठाया, दहशतगर्दी का रास्ता उसने अपनाया, क्या ये उसने सही फैसला लिया? नहीं, इसने यहाँ के नौजवानों के हाथ में कलम कागज़ के बजाय गन थमाया। क्यों? हुर्रियत लीडरों ने अगर इलेक्शन में हिस्सा उस टाइम पे लिया, क्यों लिया? वो इक़्तिदार के लिए। जब उन्होंने हारा और इन्होंने इसको दूसरी दिशा दी, इनको पता ही नहीं था इस तहरीक का, नहीं, इनको इस तहरीक का पता ही नहीं था कि इसका लेवल कहाँ तक जाएगा, ये इसको रोक ही नहीं सके। ये मेरी ही नहीं, लाखों फैमिलियाँ है जिनको आपकी कत्ल। फैमिली के साथ क्या? नहीं, बहुत सा, ये तो बिल्कुल कुछ नामालूम बंदूक बरदार आए, उन्होंने मारा। अब हम नामालूम बंदूक बरदारी कहते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? मगर हमारे आँखों के सामने वही माँ बाप जानता है, वही भाई जानता है जिसके फैमिली मेंबर को सामने चाकू से ज़बह किया गया, एक जानवर भी नहीं कर सकता है। वो वही माँ बाप जानता है, वो वही फैमिली जानती है। यहाँ जावेद कुरैशी नहीं है, यहाँ लाखों ऐसे घर है जिनके साथ इस्तिसाल किया, बेगुनाह लोगों को मारा गया, और अब बिल्कुल इनकी नींद चलेगी और न हम चलने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मुझे कोई बात नहीं करनी थी, मैं क्यों बात करूं भाई? कोई जेल गया है, क्यों गया है? वो अपने मकसद के लिए गया, मेरे लिए थोड़ी गया है, आवाम के लिए थोड़ी गया है। उसने आवाम के लिए क्या किया है? लंगेट कंस्टिट्यूंसी में जाओ देखो, कुछ भी नहीं है, ग्राउंड में ज़ीरो है। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा, इन्होंने सदक़े फितर जमा किया, इन्होंने अपने ट्रस्ट बनाए, लोगों का सदक़े फितर तक इन्होंने खाया। उसने ट्रस्ट वहाँ पे खोला, तो फिर किस गरीब को उन्होंने फ़ायदा दिया? मुझे बताए, एक गरीब को लाए कि किन गरीबों को उन्होंने फ़ायदा दे दिया? देखो, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, ऊपर से आवाज़ आ जाती है। जेल ऐसे लोग नहीं जाते हैं, जेल इसलिए अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, इज़्ज़त लेने वाला भी अल्लाह ताला, ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर ये जेल गए हैं, ये अपने करतूतों की वजह से जेल गए हैं। हमने नहीं भेजा और किसी ने नहीं भेजा, आवाम ने नहीं भेजा, इनके गुनाह बढ़ गए और इनको जेल हुई। मैं इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। जब से 370 ख़त्म हुआ, खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क भर में हुकूमत संभाली है, खासकर 2014 से जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं,
जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ये काबिल तारीफ़ है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और न किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और जो काम हो रहे हैं, आज रोड देखो, बाकी जो गरीबों के मसले मसाइल है, जहाँ पे भी जिस ऑफिस में जाते हैं शार्ट नोटिस में काम हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले एमएलए के पास जाते थे, वो 10 आदमियों को जमा करके इनका IAY केस रखता था और दूसरे गांवों में जाता था, वहाँ से भी 10 नाम उठाता था। लास्ट में 6 साल निकल जाते थे, इस गरीब को नहीं मिलता था। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, खासकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी स्कीमें लॉन्च की है जिससे एक गरीब को लाभ होता है। ये मानने वाली बात है और इससे आवाम भी बाखबर है। वो वही एक्सेप्ट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके दुकान यहाँ पे चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनके दुकानों को बंद किया, बिल्कुल। ये करोड़ों रुपया फंड्स आता था मरकज से, ये इनके जेबों में जाता था, इनके दुकानें बंद हुई। ये पाकिस्तान का भी खाते हैं, हिंदुस्तान का भी खाते हैं भाई, बात कभी एक ही नहीं करते हैं। तो इनको तो मिर्ची लगेगी, ये तो बात करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है, मगर गरीब आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ जाए। ये तो खुशी की बात है। हाँ, उनको डर है, जो दुकान चला रहे हैं 30 सालों से कश्मीर में दुकान चला रहे हैं, उनके दुकान अब बंद है।